Hello, learners. Welcome to Unacademy IES. Let's start another session of current affairs for 70th BPSC interview guidance program. Aspirants, in today's session, we have two news articles. One is the Nalanda Literature Festival 2025. All right. I believe in the previous sessions as well, I highlighted Nalanda University. All right. In this session, you will see some different aspects of Nalanda University. All right. Associated with the PPSC interview guidance program. Second topic will be announcement of, you can see here, hold on, let me show you. Announcement of the civil defense districts. All right. So दोनों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर. First of all, I am going to throw light on Nalanda Literature Festival. As we all know very well, Nalanda University, ancient university founded during Gupta period, Kumargupta first, and revived by the government of India. All right. Okay. Under this, Nalanda University stands like an epitome of the Indian culture, rich Indian legacy, destroyed by one invader, Bakhtiyar Khilji, in medieval Indian history. And revival जो है वो दिखाता है resilience showed by the India. And this literature festival, अब यहाँ पर scholars को invite करना, discussions को arrange करना, this showcased the soft power of the India. All right. So historical significance and background मैंने बता दिया, कुमार गुप्ता वगैरह सब पता है आपको, you know very well. All right. Still for your reference, जो बच्चे नए होंगे, all right, for the new aspirants, I am writing this again. Kumar Gupta first of Gupta dynasty. Many scholars visited Nalanda University. Xuanzang, popularly known as Xuanzang, all right, and he visited India in time of Harsh Vardhana. All right, and after this we see Yijing also came in India. So Xuanzang, then after him Yijing. कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से भी कई लोग यहाँ पर आए. एंड नालंदा में हम पढ़ा क्या रहे थे? बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स एंड ग्रामर. टेक्निकली नालंदा यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद द महायान branch of the Bauddha religion, Hinayana branch and Mahayana branch. So majorly aligned with the Mahayana branch of the Bauddha religion. And some other teachers, faculties in Nalanda, Atish Deepankar. All right, one such very popular faculty from Nalanda, as well as library in Nalanda University. Library in Nalanda University was known as धर्मगंज. अब इसी के कई सारे सब सेक्शंस किए गए थे, लाइक रत्नसागर, रत्न दधी, and Ratna Ranjak. Ratnasagar, Ratnodadhi, Ratna Ranjak. These were the sub parts of this library. So ढेर सारी बुक्स का एक कलेक्शन रहा यहाँ पर. All right. Now further what we see aspirants, आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े सारे जो स्कॉलर्स हैं, इवन बॉलीवुड के लोगों को भी जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया यहाँ पर. फर्दर What is the focus? Focus area क्या रहा? Emphasis on Indian multilingualism. बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन पर फोकस रहा हमारा. ओके, डिस्कशंस यहाँ पर हुए. आप लैंग्वेज एज अ करियर ऑफ कल्चर एंड मेमोरी. देखो, एज दिस इज द लिटरेचर फेस्टिवल. ये फेस्टिवल कैसा है?
दिस इज द लिट फेस्ट। तो लिट फेस्ट के अंदर में लैंग्वेज किस तरीके से करियर में आपको हेल्प कर सकता है, मेमोरी क्रिएशन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, फाइन, दीज आर द थिंग्स हियर, ओके। एंड अभी आप यहाँ पर देखो, वी हैव द कनेक्शन विद द क्लासिकल लैंग्वेजेस एज वेल, क्लासिकल लैंग्वेजेस, आइडिया ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो अभी ये एक ड्यूटी बन जाती है आपकी इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट। आपने बिल्कुल बात है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, बट वो यहाँ पर भी आपके काम का हो जाता है। एज वेल एज अलाइनमेंट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ क्लासिकल इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम्स। अब इसके लिए अगेन need of the ancient language. Ancient language is the integral part of the classical Indian knowledge systems, right? Then Nalanda Lit Fest है, then we can highlight the legacy of the Bihar. बिहार में आप देख सकते हैं, so बिहार में here we see many other monuments as well, and खास तौर पे ऐसे monuments which are associated with the Bauddha religion, like we have Nalanda, we have Vikramshila, we have Odantapuri, all right. So Bauddha and Jain religion दोनों को जोड़ सकते हैं, soft power image of the Bihar, all right. And Bihar can become the hub of knowledge and culture. These are the things here. Fine. Festivals, languages, again repeated points हैं जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं. Now क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं, क्या कुछ अगर क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ से बीपीएससी के लिए इंटरव्यू के अंदर में तो क्या हो सकते हैं. सो यू कैन सी हियर, why is Nalanda important in global educational history? How do literature festivals contribute to cultural revival? Can ancient Indian knowledge systems address modern challenges? For example, अगर आप यहाँ पर देखो, why is Nalanda important in global educational history? So अब क्यों important है, why Nalanda is important? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया इंटरव्यू में तो what would be your answer? आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट? कैसे बताएंगे? अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ में कि नालंदा वाज अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी known for the study of Buddhist philosophy, लॉजिक, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक, ग्रामर, ऑलराइट. तो अब ऐसे में अगर हम पूरे दुनिया के अंदर में हिस्ट्री को ट्रेस करना शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटीज की जो हिस्ट्री है, तो उसमें नालंदा टेक्स अ वेरी प्राइम पोजीशन, राइट. तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं. फर्दर, हाउ डू लिटरेचर फेस्टिवल्स कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल रिवाइवल? कल्चरल रिवाइवल में जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. So the rich legacy of the various languages. अब बिहार में देखो तो we have many cultural zones, right? We have Bhojpuri, we have Magadhi, we have Magahi, all right. As well as जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस के साथ में भी हम एसोसिएट करके दिखा सकते हैं कि बिहार के अंदर में जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनको बोलने वाले लोग भी बहुत बड़े नंबर में हैं. खासतौर पे इंग्लिश की बात हो गई. इंडिया में ही हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है वो बिहार के अंदर भी हुआ है. 1960-70 का वो टाइम था जब केरला वगैरह से बहुत से लोग सेटल डाउन हुए बिहार के अंदर में इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ऑलराइट. सो ऐसे में अब जो साउथ इंडियन कल्चर है, लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं वो भी पेनिट्रेट हुआ, पहुंचा, ठीक है. या तो जो यहाँ से लोग गए वो उसको लेकर के आए, राइट. एज वेल एज आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एड्रेस द मॉडर्न चैलेंजेस? अभी मॉडर्न चैलेंजेस की बात करें, सो इन द मॉडर्न चैलेंजेस द बिगेस्ट चैलेंज इज द चैलेंज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की बात है. तो अगर एंशिएंट इंडियन सिस्टम्स की हम बात करें, अपने फेस्टिवल्स की बात करें, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज के लेवल पर जो हमारे पास हेरिटेज है, हम उसकी बात करें, तो हम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वी कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय रिवाइविंग द एंशिएंट इंडियन knowledge systems, right. As well as soft power कि कई सारे कंट्रीज हैं जो कि आप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ऑलराइट. कई सारे कंट्री जैसे चाइना ही है, आप पड़ोस में देखें चाइना को, नेबरहुड में यू कैन सी चाइना. सो चाइना, जो चाइनीज कल्चर है,
इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग चाइनीज कल्चर। चाइनीज कल्चर हमें बहुत आराम से इंडिया में देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, सो हाउ दिस चाइनीज कल्चर इज कमिंग इन इंडिया? तो मूवीज हो गए, राइट, एज वेल एज इंटरनेट के थ्रू। वरियस वेबसाइट्स इंटरनेट पर हैं जिनको इंडियंस भी एक्सेस कर रहे हैं, इंडियंस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एज वेल। ठीक है, इंडिया से चाइना जाने वाले लोग, वहां से यहाँ आने वाले लोग, तो बाय दिस वे अगर चाइनीज कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग इंडियन पीपल, तो ये भी तो हो सकता है कि इंडियन कल्चर कैन इन्फ्लुएंस द चाइनीज पीपल एज वेल। ऑलराइट, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि वी कैन बैलेंस द टैक्टिकल मूव्स, कि आप चाइना में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर ऑफ द इंडिया। ऑलराइट, कि जो एंटी इंडिया स्टैंस है वो उतना रिजिड नहीं होगा अगर हम सॉफ्ट पावर को वहां पर रिफ्लेक्ट कर सकें, दिखा सकें। फाइन, सो अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हो गई, सॉफ्ट पावर की बात हो गई, डिप्लोमेसी की बातें हो गई। these are the modern challenges which can be addressed with the help of the revival of ancient Indian knowledge. All right, after this we have next topic. This is civil defense districts, also known as civil defense or civil security districts, right? So technically in Bihar अगर आप देखेंगे, so we have 38 डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में। ऑलराइट, एंड इसके अलावा हम कमिश्नरेट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर समझें कि इफ यू सी द ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी देखें बिहार का, ज्योग्राफी में यू कैन सी हियर नदर्न पार्ट ऑफ बिहार, सो नेपाल इज हियर, नेपाल इज हियर, नेपाल हमें दिखता है यहाँ से। और जो रिवराइन सिस्टम है, सो फ्लड प्रोन बेल्ट रहता है पूरा का पूरा ये। और जो सेंट्रल पार्ट आप यहाँ पर ये देखते हैं, तो यहाँ पर हमें खूब सारे फ्लड का इम्पैक्ट, डिजास्टर्स देखने को ठीक ठाक मिलते हैं। अब इन्हीं बीच में एक लंबे टाइम से डिमांड उठ रहा था, लगातार डिमांड आ रहा था कि वी शुड मेक, बिहार के अंदर में हमें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने चाहिए। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने का एजेंडा कई लेवल से आ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, वहां पर हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, वहां पर भी हो सकता है। ऑलराइट, सो जो बिहार में जो न्यू गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक गया जी वन सच सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर वन इज मुंगेर। किसको रखा गया? मुंगेर को रखा गया। ठीक है, नाउ एस्पिरेंट्स, वाई गया जी एंड वाई मुंगेर, इन्हें क्यों रखा गया? सो गया जी इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस, हॉली प्लेस है, एंड दिस प्लेस इज एसोसिएटेड विद द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। खास तौर पे तो हम बात करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द बुद्धिस्ट फॉलोवर्स एज वेल एज हिंदूज ऑल्सो विजिट गया जी फॉर द पिंडदान। ऑलराइट, सो टू पे ट्रिब्यूट टू द एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं, पूर्वजों को ऑफरिंग्स देने के लिए हिंदूज भी आते हैं। बोध गया, बौद्ध रिलीजन में तो प्लेस ऑफ निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। सो नेशनल लेवल पर पिलग्रिम्स फ्रॉम द नेशनल, ओके, देश के अंदर से पिलग्रिम्स हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर हो गए पिलग्रिम्स, तो बड़ा नंबर एक आता है, इनफ्लक्स आता है गया के अंदर में। कोई मेजर इवेंट अगर हुआ तो फिर तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट, मॉब मैनेजमेंट इज अ ट्रिकी थिंग, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पर हो जाती है कि हाउ टू मैनेज द क्राउड। सो ऐसे में अब क्या किया जाए? लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न आ गया। नाउ व्हाट वी सी, गवर्नमेंट ने इसी बात को, स्टेट गवर्नमेंट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोध गया को, गया जी को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में डाला। एज वेल एज सेकेंड थिंग इज दिस कि वाई मुंगेर, फिर मुंगेर को क्यों रखा इन्होंने, मुंगेर को क्यों रखा गया? द रीजन बिहाइंड, रीजन फॉर द मुंगेर, मुंगेर के लिए जो रीजन है वो रीजन ये रखा गया कि ये ऐसा बेल्ट है जहां पर ट्रैफिकिंग वेस्ट बंगाल से जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ से जो इंटरनल पार्ट्स हैं बिहार के, वहां जाने की कनेक्टिविटी है। ठीक है, यू कैन से हियर भागलपुर, बांका वगैरह के, जमुई वगैरह के एरियाज हैं। एक टाइम था कि नक्सल मूवमेंट वगैरह इस एरिया में ठीक ठाक ही रहता था। ऑलराइट, अब मुंगेर आप देखें तो यहाँ से जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहां पर कनेक्टिविटी आती है, तो इस जगह पर ये कनेक्टेड है। आप देखें तो खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर,
ऑलराइट, ये सब पास के डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मुंगेर को रखने के पीछे का जो कंसर्न है वो कंसर्न है इलिसिट ट्रैफिकिंग, ऑलराइट, एज वेल एज ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी का मुद्दा भी है, फ्लड, सॉइल इरोजन के मुद्दे भी हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इन सब चीजों की वजह से जो गवर्नमेंट है, स्टेट मशीनरी है, उसको प्रिपेयर होने का प्रॉपर टाइम मिले, राइट, दैट्स व्हाई मुंगेर इज आल्सो चोजन, मुंगेर को भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, इसको चूज किया गया है। ऑल राइट गाइज, तो रीजन बता दिया मैंने, आपको ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, फाइन, ओके। नाउ यू कैन सी हियर बिहार गवर्नमेंट डिसीजन। अब आप देखेंगे जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हाई पब्लिक मूवमेंट, नीड फॉर रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म एटसेट्रा, फाइन। देन फर्दर यू कैन सी व्हाट इज द रेशनल वाई गया जी एंड वाई मुंगेर, जो पॉइंट्स अगेन है वो सारे यहाँ पर मेंशन है। फाइल्स वगैरह आपको मिल जाती होंगी, ठीक है, नहीं मिल रही होंगी तो मुझे आप बताएंगे तो मैं बात करके कुछ अरेंजमेंट करवाऊंगा फाइल्स का, ठीक है, आप लोगों के लिए। फर्दर आप देखें फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो अब सिविल डिफेंस जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ठीक है, इनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने चाहिए। आप देखो नंबर 1 कि लोगों के बीच जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टेट के लेवल पर जैसे हो गया, ब्लॉक्स के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो गया, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए एफर्ट किए जाएंगे। वी ऑल नो वेरी वेल द एरिया ऑफ बिहार इज प्रोन टू द अर्थक्वेक्स एज वेल, नेपाल के साथ में जुड़ा हुआ है, ऑलराइट, तो हिमालयन जो एक इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस भी डेफिनेटली बिहार पर आता है हिमालय का, राइट, ओके। सो फ्लड का प्रॉब्लम है ही, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम है ही, ऐसे में एसडीआरएफ है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हेल्थ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल डिफेंस, जो इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट है हमारे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, वहां पे लोगों को भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। गवर्नमेंट खुद को प्रिपेयर भी कर सकती है फोकस करके कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए ही इस वजह से है। फर्दर आप देखो जो मैंने बोला अभी आपको यहाँ पर देखो लिखा होगा, यू कैन सी हियर पब्लिक अवेयरनेस मॉक ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग programs also being promoted, okay, crowd management during large social events and resource mobilization during crisis। अब ऐसे में एक चीज यहाँ पर और करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी, कि गया जी और मुंगेर का जो एरिया है गवर्नमेंट को यहाँ पर कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक से एड्रेस किया जा सके, राइट। Further, you can see here, आप यहाँ देखो, what do you understand by a civil defense district? So, what is the definition of civil defense district? Definition क्या है? तो आप देखो नाम में ही definition है। मैंने सबसे पहले बताया कि आपको कि to strengthen civil defense from the perspective of the disaster management and public safety mechanism. These are the core points. सो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर, फाइन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी मैकेनिज्म, फाइन। तो ये डेफिनेशन हो गया इसका, क्योंकि लोग देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन होता है ना कि इंटरव्यू के अंदर में आप एकदम से एग्जामिनर को ठीक से बता पाओ अपनी बात, तो फॉर दिस रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई हैज द बिहार गवर्नमेंट गिवन स्पेशल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस टू गया एंड मुंगेर। अब देखो अभी मैं वही बता के आया आपको कि गया जी और मुंगेर को आखिर क्यों यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, राइट। तो गया जी को रिलीजियस प्लेस है उसकी वजह से रखा गया है, और मुंगेर को रखा गया है क्योंकि जो मुंगेर का हमारा बेल्ट है वो यहाँ पर एक जंक्शन के जैसा है, कनेक्टिंग पॉइंट के जैसा यहाँ पर मुंगेर का एरिया काम करता है, जहाँ से ट्रैफिकिंग का बातें हो गई, फ्लड के इश्यूज हो गए, उनको एड्रेस करने में दिस इज हेल्पफुल, ठीक है गाइज, ओके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी, we will discuss some other topics in the next session, in the new session, all right, and definitely as I always say, together we can crack it, so let's crack it. Thank you.